Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now in today's lecture we will learn about operators of C language in detail. In my previous lecture I have discussed operators, little bit overview of operators was there. Now we discuss in detail operators of C language. What is operator? Operator is a symbol used to perform operation. Simple is that, right? Operators are used to operate on data and variables. In C language there are 5 types of operators: arithmetic operators, assignment operators, relational operators, logical operators, increment and decrement operators. Now, as the name indicates, arithmetic operators are used to perform mathematical operation on the values, right? These are plus, minus, multiplication, division and remainder, modulus operator. In next, assignment operator. Assignment operator is used to assign values to the variables. For example, a is equal to b or sum is equal to a plus b, you can say. अरिथमेटिक ऑपरेटर की एग्जांपल तो बहुत ही इजी है, वो मेरे हाथ से बताना। अब प्लस माइनस तो आप शुरू से करते आ रहे हैं, सेकंड क्लास से लेकर अब तक, ठीक है। वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगी कंप्यूटर में, सी लैंग्वेज, सी प्रोग्राम को यूज़ करके। Assignment operator is used to assign values to variables used in the computer programs, right? And there are 3 types of assignment operators. These are assignment operators which is used to equal sign, compound assignment operators, you can see here a plus equal, minus equal. These are used with the arithmetic operators. You can see multiplication equal, डिवीजन इक्वल एंड मॉड्यूलस इक्वल। ये जो कंपाउंड ऑपरेटर है प्लस इक्वल, इसका क्या मतलब है कि आप जो वेरिएबल है, जैसे जो स्टार्ट में यूज़ हो रहा है ए प्लस इक्वल बी मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। जैसे सम इज इक्वल टू बी आप करते हैं, सम प्लस इज इक्वल टू बी, सम इज इक्वल टू सम प्लस बी मीन्स के सम में बी की वैल्यू स्टोर होगी और फिर वो दोबारा से सम में स्टोर हो जाएगी। सम में बी की वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद अगेन वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। न्यू वैल्यू जो सम की हो जाएगी वो बी को ऐड करने के बाद होगी। क्लियर? दीज आर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्लियर? And these are used to assign values to the variables. Clear? This is very easy topic. Operators of C language is so easy topic. Next is relational operators. Relational operators, as name indicates, it shows relation. Relational operators are used to compare two values of the same type. Clear? For example, a is equal to b, a is less than b, a is less than equal to b, a and b both are of, must be of same type, integer, float, character, whatever, right? वैल्यूज़ हैं तो डेफिनेटली मैथमेटिकल होंगी, कैरेक्टर पे तो दी होंगी, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल वैल्यूज़ होंगी। a is equal to b, a is less than equal to b, not equal to b, greater than equal to. These are relational operators. Clear? And think about it, where these operators are used. These operators are used in the expressions when decision is to be based on the condition, right? After evaluation of relation expression, the result produced is either true or false.
For example, A is equal to B, true or false? A is less than B, true or false? Its value must be true or false. For example, you can use in the program these type of operators when you are making result of any class, that these marks are greater than 33, it will be pass or fail, right? अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पे आप कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। जब आप कोई रिज़ल्ट बना रहे होंगे तब आप इसको यूज़ करेंगे कि इसके जो भी स्टूडेंट है उसके मार्क्स सॉरी ग्रेटर देन 33 पास, लेस देन 33 फेल। और इसके अलावा ग्रेड्स, उसके लिए भी आप यूज़ करेंगे इसी ऑपरेटर्स को। ग्रेटर देन है, लेस देन है, 60 80, तो उसका ए बी जो भी ग्रेड आएगा वो आपने मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, राइट? These operators are used for building compound conditions. Students, you can see that single expression when you compare two values, right? Then you are using relational operators. Clear? When there are compound conditions, like एक वैल्यू को भी आपने रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू करना है, दूसरी को भी, और दरमियान में क्या यूज़ होगा? लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ सिंटैक्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स इज दैट एक्सप्रेशन 1 एंड ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 1 ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें क्या यूज़ हो रहा है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। जब टू रिलेशनल ऑपरेटर्स को मीन्स के कंपाउंड हैं, टू रिलेशनल ऑपरेटर्स को हमने कंपेयर करना होता है तो क्या यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। ए इज़ ग्रेटर देन 1 एंड ए इज़ लेस देन इक्वल टू 20। उसके बाद जो भी आपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, जिस पर्पज़ के लिए भी इस जो एक्सप्रेशन है इसको यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स का? एक एक्सप्रेशन, एंड ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2। इसी तरह से एक्सप्रेशन 1 नॉट सॉरी और ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 2। क्लियर? एंड नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड विद अ सिंगल एक्सप्रेशन। आपने देखा है कि एंड ऑपरेटर एंड अदर वन इज और ऑपरेटर इज यूज्ड विद द two expressions, expression 1 and operator or operator, expression 2, while not operator is used, जो last में है not operator, it is used with the single expression. Its value is either true or false, like a is greater than equal to 1, not a is greater than equal to 1, you are using when not operator, इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसी तरह से नॉट ए इज़ लेस देन इक्वल टू 20, या तो इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। क्लियर नाउ? नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको आप असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी टाइप में भी आता है, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीज वन वैल्यू in the variables value, and decrement operator is used to decrease one value. For example, अगर आपने x को दी हुई है वैल्यू 6, then next expression में x प्लस प्लस लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, राइट? अब इसी तरह से अगर आपने y को वैल्यू दी हुई है 12, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप लिखते हैं y माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 है तो 11 हो जाएगी। क्लियर?
Now, using a program, I will discuss operators. जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, उसको मैंने प्रोग्राम में यूज़ करके आपको बताया है। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम देखते हैं। उसी तरह से आपने जो भी अपनी लैंग्वेज इंस्टॉल की हुई है उसको आपने ओपन करना है। ठीक है, और प्रोग्राम में आपने लिखना है, स्टार्ट से देख लें, हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conir.h, ये हेडर फाइल्स हैं इनपुट आउटपुट के लिए, वाइड मेन। नेक्स्ट हमने इंटीजर टाइप किए ये वेरिएबल्स यहाँ पे किए हुए हैं, डिक्लेयर किए, एक्स वाई सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोटेशन रिमाइंडर, राइट। अब प्रिंट एफ, ये प्रिंट होगा एज इट इज़, मर्जी है आपकी प्रिंट करें या ना करें। प्रिंट एफ स्लैश एन, स्केप सीक्वेंस से तो आप जो वाकिफ़ होंगे, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, स्लैश टी टैब, इतनी स्पेस इसमें आएगी। एंटर टू नंबर्स हमने एक्स वाई को लेना है। ठीक है, यूज़र इसको वैल्यू देगा, स्कैन एफ के थ्रू यूज़र से ये वैल्यू लेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं ये सम डिफरेंस, वो हम इन टू वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए ऑपरेट करेंगे और इसको रिजल्ट शो करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, डिफरेंस एक्स माइनस वाई, प्रोडक्ट एक्स मल्टीप्लाई वाई, कोटेशन एक्स डिवाइडेड बाई वाई, रिमाइंडर एक्स परसेंटेज वाई। प्रिंट एफ में सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोटेशन रिमाइंडर, ये हमने प्रिंट किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, बल्कि यहाँ से ही देख लें। एंड पे एक्स की वैल्यू, एक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, वाई डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रिंट एफ एक्स प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट एफ वाई प्रिंट होगा। याद रखें, एक्स को हमने एक वैल्यू इंक्रीज़ किया है, वाई की वैल्यू डिक्रीज़ की है। ठीक है, ये आपको प्रोग्राम नज़र आ रहा है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, नो एरर। नेक्स्ट हमने इसको रन करना है। ठीक है, एंटर टू नंबर्स, एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, वाई की डिक्रीज़ होगी एंड पे, अभी नहीं। ठीक है, तो एक्स को हम वैल्यू दे देते हैं, स्मॉल वैल्यूज़ देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 45 वन वैल्यू, 45 एंड 87, ये हम वैल्यूज़ दे रहे हैं। देखिए आपके पास क्या आ गया, सम इज इक्वल टू 132, डिफरेंस 42, प्रोडक्ट 3912, कोटेशन 0, रिमाइंडर 45। आफ्टर इंक्रीमेंट एक्स की क्या वैल्यू थी 45, एक्स की वैल्यू आ गई 46, 87 was value of y, after decrement its value is 86. Clear students? I hope you understand this lecture perfectly. So we will start next chapter, chapter number 4 in next lecture. Till then, bye.